Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel, The World of Plant by Miss Sabine Zahoor. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabine Zahoor, plant pathologist. In our today's class, we are going to discuss the chapter number 9 of first year biology in the section of the botany, kingdom plantae. And our today's topic is the tracheophytes, which is also called the tracheophyta. Tracheophytes are basically the vascular plants. Now we have to start the kingdom planting. Before going to start our today's lecture, we are discussing some important questions, and these important questions are: what are the plants? What are the differences between the vascular and the non-vascular plants? What are the tracheophytes or the tracheophyta? Member of the tracheophyta. How many classes of the tracheophytes? How the tracheophytes can take their nutrition? How tracheophytes can reproduce? These all are very important questions which we have to discuss in our today's lecture, and in the ending of the lecture you will find out the answer of these important questions. So you must have to continue the video till the end of the video. During the lecture, definitely you will clear your all the questions and your all the concepts will be clear, inshallah. Now we are going to start our today's lecture. Our today's lecture is starting from the session of the kingdom plantae. Kingdom plantae के section से हम start करते हैं. So what is kingdom plantae? Kingdom plantae में तमाम तर plants को ऐड किया गया है. प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है और वो उस पिगमेंट की हेल्प से अपने लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फूड प्रिपेयर्ड करते हैं. सो व्हाट आर द प्लांट्स? द प्लांट्स आर all the eukaryotic, multicellular and the chlorophyllous living organisms which have the cell wall made up of the true cellulose are included in the kingdom plantae. Plants are the chlorophyllous, multicellular, eukaryotic living organisms which having the cellulose, which having the chlorophyll, and they can prepare their own food material. They don't need to depend on other for the purpose of their nutrition. Now we have to discuss the characteristics of the plants. All the plants are the living organisms. They all are the multicellular, they all are the eukaryotic, they reproduce sexually and asexually as well. They are the chlorophyllous because they have the chlorophyll inside of the chloroplast. Plants are the autotrophs. They are also called the producers because they are produce the food material. They are performing the function of the photosynthesis in which they can prepare their own food material. Plants can prepare their own food material because when they have the chlorophyll as the pigment, so in the presence of the sunlight, in the presence of the water and in the presence of the carbon dioxide, they can prepare their own food material. When they prepare their food material in the form of the glucose, so some of the amount of the glucose they can store as the organic compound in their body. प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलती है वो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं. लाइक वी, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. सो प्लांट्स आर वेरी बेनिफिशियल बिकॉज दे कैन यूज़ आर कार्बन डाइऑक्साइड, आर वेस्ट प्रोडक्ट, एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. मैनी मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. बहुत सारी मेडिसिन प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं. प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. प्लांट से हम वुड लेते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन लेते हैं. प्लांट से बनने वाली जितनी भी अशिया होती हैं वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन सब डिविजन्स on the basis of presence or absence of the vascular bundles. Now, what is vascular bundle? Vascular bundle is basically the combination of xylem and phloem tissues. Xylem and phloem collectively क्या कहलाते हैं? Vascular bundle कहलाते हैं और इनको हम conducting tissues भी कहते हैं. On the basis of presence and absence of the vascular bundle, kingdom plantae are divided into the two main subdivisions. First one is the bryophytes and second one is the tracheophytes.
As we discussed in our previous lecture about the bryophytes, bryophytes कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये किंगडम प्लांटी के वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. There are three main classes of the subdivision Bryophyta: class Pitaceae, liverworts; class Musae, mosses; class Anthocerote onwards. Second subdivision is the Tracheophytes or the Trachophyta. The members of the kingdom Plantae which are having the vascular bundle, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है, मीन्स दे हैविंग द कंडक्टिंग टिश्यूज, xylem एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड द ट्रैकियोफाइट्स. So students, there are the 5 classes of the subdivision Tracheophyta. First one class is the class Psilopsida. The member of the Psilopsida is called the Psilopsids. Second class Lycopsida. The members of the Lycopsida is called club mosses. Third class is the class Sphenopsida. The member of the Sphenopsida are called horsetail. Fourth class is the Pteropsida. क्लास टेरोप्सिडा के मेंबर्स फर्न्स कहलाते हैं. फिफ्थ क्लास इज द क्लास स्पर्मोप्सिडा. द मेंबर ऑफ द स्पर्मोप्सिडा आर कॉल्ड द सीड प्लांट्स और द स्पर्मोप्सिड्स. राइट, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द ट्रैकियोफाइट्स. सो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द ट्रैकियोफाइट्स? देयर आर 5 क्लासेस ऑफ द ट्रैकियोफाइट्स. क्लास Psilopsida, class Lycopsida, class Sphenopsida, class Pteropsida, class Spermopsida. Now students, we are starting the Tracheophytes. So Tracheophytes are the members of the Kingdom Plantae. Kingdom Plantae में vascular plants होते हैं. ये सब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा से बिलोंग करते हैं. ट्रैकियोफाइट्स सब डिवीजन ट्रैकियोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं. ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है, मीन्स दे हैविंग द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज. और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं इनको, और ये वेस्कुलर बंडल भी कहलाते हैं. राइट, सो वो तमाम प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल मौजूद है, दे ऑल आर कॉल्ड द ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियोफाइट्स आर द मेंबर ऑफ सब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स और द ट्रैकियोफाइटा. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा आर एज फॉलोज. Trachophytes having the conducting vessels, xylem and the phloems. They having conductive tissues, xylem and phloem are present in the plant body. A protective layer of the sterile jacket cells around the reproductive organs are present. They are the multicellular embryos retained within the archegonia. इनके पास multicellular embryo होता है जो कि retention करता है inside the archegonia. Now what is archegonia? Archegonia is the female reproductive organ which is able to produce egg cell or the ovum cell. Is that clear? On the aerial parts, protective covering cuticle is present which prevents the excessive loss of water during the climatic condition और दी हॉट क्लाइमेट सीजन. हॉट क्लाइमेट सीजन्स में जब लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो रहा होता है तो इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्यूटिकल की फॉर्म में, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज करके रखती है और रिटेंशन ऑफ वाटर करती है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कम से कम हो, मीन्स डिक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन. राइट, ट्रांसपायरेशन के रेट को ये कम से कम कर देती है. इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट. ट्रैकियोफाइट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज उस वक्त होता है जब प्लांट ने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करना होता है. इज दैट क्लियर? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइट के ये तमाम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Now we have to discuss the detailed discussion of the subdivision Tracheophytes which are the vascular plants. So vascular plant को हमने कितनी सब क्लासेस में डिवाइड किया था? इसकी जो क्लासेस थी, पहली क्लास साइलोप्सिडा. साइलोप्सिडा के मेंबर कहलाते हैं साइलोप्सिड. सेकेंड क्लास लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा के मेंबर क्लबमोसिस कहलाते हैं. थर्ड क्लास स्फिनोप्सिडा. स्फिनोप्सिडा के मेंबर होर्सटेल्स कहलाते हैं. फोर्थ क्लास टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा के मेंबर्स फर्न्स कहलाते हैं. एंड द फिफ्थ क्लास इज द स्पर्मोप्सिडा.
The member of the spermopsida are called spermopsids or the seed plant. इनके पास seed होता है. They are also called the seed bearing plant. Now students, we have to discuss the detailed discussion of the first class Psilopsida, which are also called the Psilopsids. Psilopsids are the fossils representatives of the vascular plants belonging to the Silurian period and the Devonian period. Silurian और Devonian period से belong करने वाले वो तमाम फॉसिल्स हैं जो कि एक्सटेंट हो गए हैं. ठीक है, इस क्लास में वो तमाम मेंबर्स को रखा गया है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स है, एक्सेप्टिंग सिंगल जीनस. एक जीनस अभी प्रेजेंट है जबकि बाकी रिमेनिंग जीनस एक्सटेंट हो गए हैं. हमारे पास फॉसिल्स की फॉर्म में ये मौजूद है. फॉसिल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव क्लास है ये, जो कि फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि साइलोप्सिड के मेंबर पहले भी दुनिया में एग्जिस्ट करते थे. राइट, सो दे हैविंग द स्पोरोफिटिक एज वेल एज द स्पोरोफाइट. ठीक है, स्पोरोफिटिक स्टेज होता है. स्पोरोफाइट्स आर सिंपल डाइकोटिमसली ब्रांच प्लांट. ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट. जैसे हमें पता है ब्रायोफाइट्स के करेक्टर्स में आता है कि ब्रायोफाइट्स आर दोज प्लांट विच डोंट हैव ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स, राइट, एंड ट्रू स्टेम. ठीक है, सो साइलोप्सिडा के जो मेंबर हैं उनके पास भी ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं होती, बिकॉज ये पहली क्लास है, ये ट्रेक्योफाइट की पहली क्लास है. Two leaves and two roots are absent because these Psilopsids are the primitive members of the Tracheophyta. Tracheophyta के ये primitive members हैं जो कि developed होकर एक much branch plant और long tree की form में grow करते हैं. Undergoes stems that contain the unicellular rhizoids similar to the roots. Rhizoids present होती हैं जो कि बिल्कुल root hairs की तरह होती हैं. The aerial stems are green and carry out the photosynthesis. Aerial stem होता है जिसके पास green pigment होता है, means having the chlorophyll as the pigment. So अपने लिए photosynthesis का function करता है, यानी food material अपने लिए खुद prepared करते हैं. लैकिंग ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम. इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि इनके पास कैम्बियम टिश्यूज एब्सेंट होते हैं. राइट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है क्योंकि स्पोरोफिटिकली ये जर्मिनेट करते हैं, स्पोरोफिटिकली ये रिप्रोड्यूस करते हैं. सो इनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है. स्पोरेंजिया डेवलप्ड एट द टिप ऑफ द सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस. हैव यू सीन इन द पिक्चर, आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में कि इसकी जो स्टेम है वो डाइकोटिमसली ब्रांच है, यानी दो तरफा दो शाखें, टू ब्रांचेस बन जाती हैं, एक स्टेम जाती है जो कि आगे जाके टू ब्रांच बना देती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइकोटिमसली ब्रांच कहते हैं. और आप हर ब्रांच की टिप पर देखेंगे कि आपको एक स्पोरेंजिया नजर आएगा. स्पोरेंजिया के पास थाउजेंड्स ऑफ द स्पोर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन. स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद स्पोर्स डेवलप्ड हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द स्पोरेंजिया, और ये वॉल रप्चर हो जाती है, तमाम तरह स्पोर्स हवा में लिबरेट हो जाते हैं और ये आगे जाके जर्मिनेट कर जाते हैं. मियोसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स विद इन द स्पोरेंजिया. मियोसिस के प्रोसेस के जरिए स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर मल्टीपल ऑफ द स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे जाके एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकें. इसके एग्जाम्पल में आता है राइनिया प्लांट. राइनिया जो कि एक्सटेंट है, हमें फॉसिल स्टडी से राइनिया के बारे में पता चलता है. साइलोटम एंड द टेमिजिप्स्टिस. ठीक है, सो टेमिजिप्स्टिस जो है ये भी प्रेजेंट है और साइलोटम भी प्रेजेंट है, लेकिन राइनिया हमें फॉसिल स्टडीज से पता चलता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज द राइनिया. समटाइम एग्जाम से सवाल आता है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा है, सो आपको याद रखना है राइनिया इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, और ये फॉसिल स्टडीज से हमें पता चला है कि राइनिया इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. राइट, जबकि साइलोटम और टेमिजिप्स्टिस हमारे पास किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है. ठीक है, जबकि राइनिया एक्सटेंट हो गया है. राइट, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइलोप्सिडा. क्लास साइलोप्सिड्स के आपने कैरेक्टर्स को पढ़ा. नाउ वी हैव टू डिस्कस द characteristics of the second class Lycopsida. The members of the Lycopsida belongs to the middle Devonian and the Carboniferous period. They were very large trees that formed the earth first forest. ये वो प्लांट है जिन्होंने दुनिया में पहला जंगल बनाया था, यानी फर्स्ट फॉरेस्ट लाइकोप्सिड से बना था. They were very large trees that formed the earth first forest.
फर्स्ट फॉरेस्ट अर्थ पर लाइकोप्सिडा के मेंबर नहीं बनाया था, ठीक है, यानी लाइकोप्सिडा के मेंबर्स फॉर्म्ड होकर डेवलप्ड हुए, बिग ट्रीज बनाए और उन बिग ट्रीज से फर्स्ट फॉरेस्ट बना था दुनिया में, ठीक है, अर्थ पर ज़मीन पर पहला फॉरेस्ट बन गया था। ओनली 5 लिविंग जेनरा ऑफ दिस ग्रुप्स आर प्रेजेंट, राइट, 5 जेनरा इस ग्रुप के अभी प्रेजेंट हैं। 2 मेंबर्स स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आर कॉमनली इन मेनी एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आसानी से अवेलेबल हैं, हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। दीज प्लांट्स हैव ट्रू ब्रांचेस दैट अंडरगो These plants have true branched underground. These plants have true branched underground roots. True leaves also present, which have arisen as simple scale-like outgrowth emerging from the outer tissues of the stem. ठीक है, इनके पास लीव्स मौजूद होती हैं, इनके पास ट्रू ब्रांचेस होती हैं, रूट्स मौजूद होती हैं, राइट। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव लीव्स बियरिंग द स्पोरेंजिया ऑन देयर सरफेस आर प्रेजेंट। सच टाइप ऑफ द लीव्स आर नोन एज द स्पोरोफिल्स, राइट। सो ये एक टर्म आपको याद रखनी है, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स स्पेशल टाइप की लीव्स होती हैं, ठीक है, जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। सो स्पोरो मीन्स द स्पोर्स एंड फिल्स, PHYLLS, फिल्स, फिल्स मीन्स लीव्स, right? So sporophylls are specialized leaves which are having the sporangia, which bearing the sporangia, इनके ऊपर sporangia attached होते हैं। When these sporangia are developed, they are having the multiple of the spores. These spores become mature. When they become mature, they exert the pressure on the outermost wall of the sporangia and then sporangia become rupture. सारे spores हवा में liberate हो जाते हैं, then वो क्या करते हैं, वो further grow कर कर एक new plant बना देते हैं, Lycopsida. In the some member of the Lycopsida, the sporophylls are collected on the short length of the stem and form cone-like structure that is called the strobilus. बहुत सारे लाइकोप्सिडा के कुछ मेंबर्स में जो स्पोरोफिल्स होती है वो कलेक्ट होकर बिल्कुल कोन लाइक एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। दैट कोन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस किसे कहते हैं? एक कोन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है, जिस पर स्पोरेंजिया अटैच होते हैं, राइट। द कोन इज रदर क्लब शेप, hence the name is clubmosis for the lycopsids, right? इन्हीं कोन की वजह से इस क्लास को हम कहते हैं क्लबमोसिस, बिकॉज दीज कोन आर क्लब शेप्ड। कैसी होती है? क्लब शेप की तरह होती हैं, सो दे आर कॉल्ड द क्लबमोसिस। यही वजह है कि लाइकोप्सिडा को हम क्लबमोसिस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द स्ट्रोबिलस दैट जस्ट लुक लाइक द क्लब शेप, सो वी आर सेइंग दैट दीज आर द क्लबमोसिस। इज दैट क्लियर? इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में आते हैं लाइकोपोडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम प्लांट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, आपको स्टम नज़र आ रही है, आपको लीव्स नज़र आ रही हैं और स्ट्रोबलस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा की एग्जांपल कौन सी है? लाइकोपोडियम। और इसको यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रोबलस दिखाई दे रहा है। स्ट्रोबलस बेसिकली किसे कहते हैं? ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफिल्स से बनते हैं। और स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? स्पोरोफिल्स वो स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द थर्ड क्लास। Now dear students, we have to discuss the third class is Sphenopsida. The member of these Sphenopsida are called the horsetails, right? The member of these Sphenopsida plants belongs to the Devonian and the Carboniferous period, found in the wetlands. Only on the living member Equisetum, commonly called as horsetail, exists today. Means तमाम तरह स्फेनोप्सिडा के मेंबर एक्सटेंट हो गए हैं, ओनली इक्विजिटम अभी एग्जिस्ट करता है, राइट। एंशिएंट स्फेनोप्सिड्स वर लार्ज ट्रीज बट नाउ मोस्ट ऑफ दीज आर स्मॉल, लेस देन 1 मीटर, राइट। स्फेनोप्सिड्स के जो पहले मेंबर प्रेजेंट थे
यानी डिवोनियन पीरियड में और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो प्रेजेंट थे स्फिनोप्सिड के मेंबर, वो कैसे थे? वो लार्ज ट्रीज के फॉर्म में थे। बट अब जो मेंबर इक्विजिटम प्रेजेंट है ये अबाउट 1 मीटर इन लेंथ है, 1 मीटर से भी कम लेंथ का है ये, ठीक है। इससे पहले के जो मेंबर थे वो बड़े बड़े ट्रीज के फॉर्म में थे। कोल डिपॉजिट्स of today were formed from the dead bodies of those plant। बेसिकली स्फिनोप्सिड्स के जो मेंबर हैं उनकी जब डेथ हो गई थी तो उनसे जितना भी कोल बना वो अब हम यूज़ करते हैं, यानी ज़मीन के नीचे जितना भी कोल है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फिनोप्सिड्स से है, ठीक है। क्योंकि कोल की जो डिपोजिशन हुई है ज़मीन में वो बेसिकली किसकी वजह से है कि डिवोनियन पीरियड में स्फिनोप्सिड्स के बड़े बड़े जंगलात थे, बड़े बड़े दरख्त थे, लेकिन एक टाइम आया जब वो एक्सटेंट हो गए और ज़मीन के अंदर दब गए और ज़मीन की जो हीटिंग पावर होती है उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गए इनटू द कोल। These plants possess photosynthetic aerial stems and अंडरग्राउंड राइजोम्स। स्फिनोप्सिडा का जो मेंबर है इक्विजिटम प्लांट के पास फोटोसिंथेटिक एरियल स्टेम होती है। प्लांट्स possess photosynthetic aerial stems and underground rhizomes। True roots and leaves are present। Stems are hollow and are jointed। Whorls of leaves occur at the each joint। इनके जो स्टेम होते हैं वो होलो होते हैं और ज्वाइंटेड होते हैं। हर ज्वाइंट पर वॉल्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर ज्वाइंट पर। और स्टेम्स के पास सिलिका होता है, इस वजह से ये पोर्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि इनके पास कैम्बियम सेल्स मौजूद नहीं होते। स्पोर्स आर बोर्न इन द टर्मिनल कोन्स। स्पोर्स भी डेवलप्ड होते हैं, लेकिन स्पोर्स कहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं? एट द टर्मिनल कोन। टर्मिनल एजेस पर ब्रांचेस की कोन्स मौजूद होते हैं जो कि स्ट्रोबलस कहलाती हैं। और स्ट्रोबलस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रोबलस किसे कहते हैं। स्पोरोफिल्स वाली लीव्स होती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबलस कहते हैं। एंड ऑल आर अलाइक, तमाम कोन्स एक जैसी होते हैं। प्लांट्स आर होमोस्पोरस। कैसे होते हैं? होमोस्पोरस। होमो मीन्स द सेम एंड स्पोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड गिव राइज टू स्मॉल गैमेटोफाइट्स, और गैमेटोफाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं दैट बियर बोथ आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। स्फिनोप्सिड्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज भी होता है और गैमेटोफिटिक स्टेज भी होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज में ये स्ट्रोबलस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज में ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमीट्स इनके प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच इज आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। Archegonia is the female reproductive parts which producing the ovum or excel, whereas Antheridia is the male reproductive parts which is producing the sperm cells. The sexes are not separate. ये एक दूसरे से अलग नहीं होते बल्कि एक साथ ही होते हैं। Equisetum is only the living species. Reproduction by means of the spores made in small cones at the tip of the branches. Reproduction by means of the spores made in the small cones at the tip of the branches. In the prehistoric time, some plants of the class Sphenopsida grew to the large trees. क्या करते थे? बड़े बड़े दरख्त बनाते थे। लेकिन अब सिर्फ एक इक्विजिटम प्रेजेंट है और इक्विजिटम जो है वो अबाउट 1 मीटर की लेंथ रखता है। इज दैट क्लियर? इक्विजिटम कॉल दी स्कोरिंग रश इज दी ओनली लिविंग स्पीशीज। ठीक है, ये सिर्फ ओनली लिविंग स्पीशीज है, इसलिए क्लास स्फेनोप्सिडा की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में इक्विजिटम प्लांट आता है एंड इक्विजिटम कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल। इज दैट क्लियर? इसी वजह से स्फेनोप्सिडा के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? हॉर्स टेल प्लांट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इक्विजिटम प्लांट। You can see that stem of the equisetum plant is jointed stem होता है। इसके पास leaves मौजूद होती हैं। leaves कैसी हैं? बिल्कुल at the point of joint, जहाँ पे joint है वहाँ से leaf arise होती है और बिल्कुल इकट्ठी एक walls की सूरत में होती हैं। ठीक है, फिर एक joint का distance आता है, यानी node एंड internode का distance आता है। ये jointed portions हैं जहाँ पर leaves arise होती है और at the tip of the branch strobilus form होता है
और स्ट्रोबलस जो फॉर्म होता है वो फर्टाइल स्टेम पर होता है। फर्टाइल स्टेम मीन्स वो स्टेम जिसके पास एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने की, राइट। सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्विजिटम प्लांट्स। इसके पास रूट्स मौजूद है, राइजोम मौजूद है, ट्यूबर मौजूद है, इसके पास नोड हैं, इंटरनोड्स हैं, लीव्स हैं। लीव हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल ज्वाइंटेड पॉइंट्स पर मौजूद होंगी, और वो ज्वाइंटेड पॉइंट्स क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। दो नोड के दरमियान का फासला इंटरनोड कहलाता है, राइट। सो हर एक नोड पर आपको लीव्स नजर आएंगी। फर्टाइल स्टेम पर स्ट्रोबलस दिखाई देगा, और स्ट्रोबलस के अंदर बहुत सारी स्पोरोफिल्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोरेंजिया का क्या काम होता है, स्पोरेंजिया का काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना, राइट। सो दिस इज द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इक्विजिटम प्लांट। जब इक्विजिटम ने गैमेटोफिटिकली रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करता है, और एंथ्रीडिया के पास स्पर्म होता है और आर्चिगोनिया के पास एग सेल मौजूद होता है और जैकेट लेयर में इनक्लोज होता है। स्पर्म जाके जैकेट लेयर के इनसाइड एग को फर्टिलाइज करता है, और इस तरीके से जाइगोट बनता है और एक न्यू इक्विजिटम का प्लांट फॉर्म हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फिनोप्सिडा। और स्फिनोप्सिडा का मेंबर कौन सा हमने स्टडी किया, इक्विजिटम, विच इज द ओनली वन लिविंग प्लांट, राइट। इस क्लास का एक ही लिविंग प्लांट है जिसका नाम क्या है, इक्विजिटम प्लांट। इज दैट क्लियर? Now students, we have to discuss the fourth class. The name of fourth class is Pteropsida. The member of the Pteropsida class are called the ferns plant. ठीक है, क्या कहलाते हैं, fern plant कहलाते हैं। These plants belong to the Devonian and the Carboniferous period and decline in the Paleozoic period. Paleozoic period में ये decline हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब भी ये present है। They are very well developed plants having vascular system with true roots, true stem and true leaves. Leaves are probably arisen from the flattened web branched stem. They are large and provide much greater surface area for the function of photosynthesis. इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर लीफ का साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्लांट अपने लिए फूड मटेरियल को तैयार करेगा, राइट। लीव्स ऑफ द फर्न्स आर समटाइम्स सिंपल बट मोर ऑफन दे आर कंपाउंड बीइंग डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस लीफलेट्स। ठीक है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये कैसी होती हैं, ये कंपाउंड लीव्स होती हैं। ये सिंगल लीफ नहीं होती बल्कि क्या होता है, ये कंपाउंड लीव्स होती है। इनके पास बहुत सारे लीफलेट्स मौजूद होते हैं। आपको ये स्मॉल लीव्स नज़र आ रही होंगी, बेसिकली ये स्मॉल लीव्स क्या है, ये लीफलेट्स हैं, ठीक है। In the most modern ferns of the temperate region, the stems are prostrate on the soil or they may be in the soil and the large leaves are only part normally seen. ठीक है, लीफ का जो बड़ा हिस्सा होता है वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि इनका स्टेम भी बाहर की साइड पर दिखाई देता है और कुछ में जो स्टेम होता है वो इनसाइड द सॉइल ग्रो करता है, राइट। सो इसमें हमारे पास टेरोप्सिडा में एग्जांपल आती है फर्न प्लांट की, और फर्न प्लांट में हमारे पास नॉर्मली बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हमारे पास फर्न्स है, टेरेस प्लांट होता है, ठीक है। हियर यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर दैट द बॉडी ऑफ द फर्न प्लांट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है फर्न की, जिसमें यू कैन सी रूट्स आर प्रेजेंट, राइजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट, फॉन्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लैड मौजूद होता है, लीफ ब्लैड मौजूद होता है, बाकी लीफलेट्स मौजूद होती हैं, राइट। सो टेरेस प्लांट की एग्जांपल में हमारे पास फर्न आता है, हमारे पास एडियंटम प्लांट आता है और हमारे पास टेरेस प्लांट आता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ द टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा की जो हमारे पास क्लास है टेरोप्सिडा में, उसकी एग्जांपल में हमारे पास वो तमाम लीव्स आती हैं जो कि स्पोरोफिलस लीव्स होती हैं, ठीक है, जैसे जिनके पास स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। Here you can see in the picture that a leaf having the number of the spores, आपको लीफ की बैक साइड पर आपको बहुत सारे स्पोर्स नजर आएंगे which are brown in color. Basically these are the sporangia. Sporangia having the multiple of the spores, right? जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं सो ये स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं और
हवा में लिबरेट हो जाते हैं और न्यू फॉर्म प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो बहुत सारे जो ट्रेक्योफाइट्स के मेंबर्स हैं वो ट्रेक्योफाइट्स के मेंबर्स स्पोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है? स्पोरोफिल्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। हियर यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर दैट स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है वहां पर आपको नजर आएंगे स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया वाली लीव्स क्या कहलाती हैं? स्पोरोफिल्स कहलाती है, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द एग्जांपल ऑफ द फर्न प्लांट। हियर यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न प्लांट। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फर्न प्लांट इज की जो बॉडी होती है बेसिकली वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। इसके लीव्स में स्पोर्स मौजूद होते हैं, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स होती हैं जिसको स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरेंजिया जब हियर यू कैन सी इन द पिक्चर फर्न प्लांट की लाइफ साइकिल में जो 2 स्टेजेस आते हैं, पहला स्टेज आता है स्पोरोफिटिक स्टेज और सेकंड फेज आता है गैमेटोफिटिक स्टेज। अब इन दोनों स्टेजेस में क्या डिफरेंस है? स्पोरोफिटिक स्टेज में स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज में गैमेटोफाइट फॉर्म्ड होता है। जब स्पोरोफाइट फॉर्म्ड होता है सो स्पोरोफाइट में जो लीव्स होती हैं इनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और ये लीव्स स्पेशलाइज्ड लीव कहलाती है, स्पोरोफिल्स कहलाती हैं, राइट। जब स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं सो स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पे इनको नरिशमेंट मिलती है वहाँ पर ये नरिशमेंट लेकर ग्रो कर जाते हैं और बना देते हैं प्रोथेलस। और जो हार्ट शेप ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, सो ये कहलाता है प्रोथेलस ऑफ द फर्न। फर्न का प्रोथेलस होता है, फिर ये ग्रो करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है गैमेटोफाइट। प्रोथेलस डेवलप्ड इनटू द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द आर्चिगोनिया whereas male gametophyte is called the antheridia. Antheridia is able to produce the sperm cell whereas archigonia is able to produce the ovum or the egg cell. फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म आर्चिगोनिया में प्रेजेंट egg cell को जाके फर्टिलाइज करता है, egg cell फर्टिलाइज हो जाता है और ग्रो करता है इनटू द जाइगोट, और जाइगोट ग्रो करने के बाद एक फर्न का न्यू प्लांट बना देता है और फर्न देन फर्दर ग्रो करता है और एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Now students, we have to discuss the fifth class. The fifth class of the Tracheophyta is called the Spermopsida. Fifth class of the Tracheophyte is Spermopsida. The member of the Spermopsida is called Spermopsids. They bearing seed. They are also called the seed bearing plant. Seed plants कहलाते हैं। ये first appear in the late Devonian and become dominant in the Carboniferous period. ये Devonian period में दिखाई दिए थे पहले और कार्बोनिफेरियस पीरियड में ये डोमिनेंट हो गए थे। स्पर्मोप्सिडा के जितने भी मेंबर हैं वो सीड बियरिंग प्लांट भी कहलाते हैं और इनकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है। गैमेटोफिटिक स्टेज इज इवन मोर रिड्यूस देन इन द फर्न प्लांट and the known photosynthetic or free living plant, right? The sperm of the most modern species are not independent, free swimming flagellated cells. Young embryo is enclosed within a seed coat and can remain dormant for long time period. Spermopsida can also be divided into the 2 main subgroups which are as gymnosperm and angiosperm. राइट, स्पर्मोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं वो स्पर्मोप्सिड्स कहलाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत कम टाइम पीरियड के होते हैं। इवन ऑफ द फर्न प्लांट से भी कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। इट्स मीन गैमेटोफाइट उस वक्त बनता है जब प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, राइट। सो एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए ही गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। इसका जो स्पर्म होता है वो स्पर्म कैसा होता है? मॉडर्न होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्री स्विमिंग करता है और फ्लैजिलेटेड सेल्स भी होते हैं। और जबकि जो एग होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर इनक्लोज होता है और काफ़ी टाइम ड्यूरेशन तक इनक्लोज रहता है। कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, ठीक है।
और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सीड प्लांट्स, टू टाइप्स ऑफ द सीड्स प्लांट, एंजियोस्पर्म and the gymnosperm. Angiosperm are also called the flowering plants. They having the seed, and seed is enclosed inside the ovary, means ovary is present and ovary is developed into the fruit. Whereas gymnospermic plant are non-flowering plants. They having the seed and seed is necked. Ovary is absent and they are not able to produce the fruit. ये fruit produce नहीं करते, they are just only producing the seed, and seed is enclosed in the cone like structure, right? Ovary के अंदर enclosed नहीं होता, बल्कि इनका जो seed होता है वो necked form में होता है, present होता है cone like structure में. Here you can see also in the picture that एंजियोस्पर्मिक सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. फ्रूट के अंदर एंजियोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, राइट? बिकॉज एंजियोस्पर्मिक सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी एंड ओवरी इज डेवलप्ड इनटू द फ्रूट. हियर यू कैन सी इन द एप्पल प्लांट आपको सीड नजर आएंगे एंड सीड्स आर कॉल्ड द ओव्यूल्स एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, राइट? Whereas in the gymnospermic plant, ovary is absent. Only cone scale is present. On this cone scale यहाँ पर एक सीड अटैच होता है और ये जो कोन स्केल है ये मिलकर क्या बनाता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज ओपन. सो हम ये कहते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आर दोज प्लांट विच हैविंग द सीड एंड सीड इज नेक्ड, राइट? एंड सीड इज प्रेजेंट इन द cone like structure. Whereas angiospermic plant are those plant which having the seed and seed is enclosed inside the ovary and ovary is developed into the fruit. So this is the difference between the angiospermic plant and the gymnospermic plant. So this is all about our today's lecture, in which we have discussed the important topics, important classes of the tracheophytes. In the beginning of the lecture, we were raised some important questions, and the questions are, in the beginning of the lecture, we were raised some important questions, and questions are: what are the plants? What are the what are the differences between the vascular and the non-vascular plants? What are the tracheophytes? How many classes of the tracheophytes? How tracheophytes can take their nutrition? How tracheophytes can reproduce? With hope so कि आपको तमाम तर questions के आंसर मिल गए होंगे. If you have any query, if you want to ask me any question, so you must have to ask me. You can write in the comment box or you can email me. I will definitely give you the answer of your each and every question. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने ट्रैकियोफाइट्स के बारे में स्टडी किया, ट्रैकियोफाइट्स के 5 क्लासेस के बारे में स्टडी किया, वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, ट्रैकियोफाइट्स की 5 क्लासेस, क्लास साइलोप्सिडा, क्लास लाइकोप्सिडा, क्लास स्फिनोप्सिडा, क्लास टेरोप्सिडा एंड क्लास स्पर्मोप्सिडा के बारे में डिस्कस किया. स्पर्मोप्सिडा को हम सीड बियरिंग प्लांट्स कहते हैं. सीड बियरिंग प्लांट की 2 सब ग्रुप्स होते हैं, जिसको एक को एंजियोस्पर्म और दूसरे को जिम्नोस्पर्म कहते हैं. हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया. सो विद होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा. If you attend the lecture in the middle of the live session, so you must have to attend the complete lecture, right? So definitely आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर किसी ने लाइव सेशन को अभी ज्वाइन किया है, so अगर वो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना चाहते हैं तो लाइव क्लास के बाद भी आप लोग इसको अच्छे से सुन सकते हैं. If today's lecture is informative and beneficial for your academic growth, so please like and comment on the videos. Subscribe my channel The World of Plant by Sabeen Zahoor, and also press the bell icon for the notification of more informative videos. Please do share my channel and share with your friends and family. Thank you so much. आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रैकियोफाइट्स को डिस्कस किया. एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो यू मस्ट हैव टू वॉच द लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर को अगेन वॉच कीजिए. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. आई शैल बी बैक विद अनदर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर एंड टॉपिक very soon. Till then, watch, like, comment and share the video. Thanks for watching. To all my subscribers, to all my dear students, to joining my channel The World of Plant by Sabeen Zahoor. Don't forget to like, subscribe, share, write in the comment box to telling
what you like or what you want to like to make the video on that topic. Inshallah, I will definitely make the video on your suggested topic. Till then, take care. Allah Hafiz. Have a wonderful day. Keep smiling, keep watching, keep learning. Thank you so much. Allah Hafiz.